All right. So what we are talking here is Article 21, protection of life and personal liberty. हमने आर्टिकल 20 तक बात कर ली थी. So Article 21, it's one of the most important and prominent fundamental rights, and it guarantees protection of life and personal liberty to every person. And Supreme Court has expanded its scope to include various rights under the right to life doctrine. अब यहाँ पर देखिएगा that हमारे जो इंडिया है, in India we have made a journey. We have made a journey where Article 21 it was treated as a mere animal existence. मतलब सिर्फ आप जिंदा हैं, आप द स्टेट विल इंश्योर दैट यू आर अलाइव. ओके, so this was read in article 21 to we have made a journey from mere animal existence, that was the interpretation of article 21, to living life to one's fullest potential. ओके, सो ये जो है लिविंग लाइफ टू वंस फुलेस्ट पोटेंशियल, ये मेनका गांधी केस में हमें देखने को मिला था. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 वाज देयर. मैं ये क्यों लिख रहा हूं? व्हाई? बिकॉज दिस वाज ए क्वेश्चन. दिस इज ए प्रीलिम्स क्वेश्चन. ये प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है. व्हाट डज लिबर्टी मीन? ओके, सो इंडियन कंटेक्स्ट में इसका मतलब होता है लिविंग लाइफ टू वंस फुलेस्ट पोटेंशियल. ओके, सो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है. ओके, लिबर्टी भी इसमें जो है, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर मियरली आउट ऑफ द जेल, और इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर मियरली अलाइव. इफ यू आर नॉट एबल टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट पोटेंशियल, it means that your article 21 is being abrogated. Please read the text. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Now this is very important. Are we in this day and age 2025 के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, still following the procedure established by law? We have gone from, okay, due process. Okay, we have gone from due process. Okay, from procedure established by law to due process. Okay, is it clear? Is it clear? ठीक है. ये मेनका गांधी वही है, MANE के मेनका गांधी है ना, MANE की मेनका गांधी. सो शी इज द वाइफ ऑफ संजय गांधी. ओके, सो मेनका गांधी जो है वो मैं समझाता हूं. देखिए, अब यहां पर क्या है कि पहले जो केसेस आए इन द इनिशियल डेज बिफोर मेनका गांधी, द कोर्ट्स they were very sure that procedure established by law is literal. Procedure established by law is literal. इसका मतलब क्या है? आप जो है यहां पर क्या लिखा हुआ है, पूरा चीज पहले पढ़ना होगा हमें. बहुत ध्यान से देखना. यहां पर मेक और ब्रेक सिचुएशन है फॉर योर कंसेप्ट. ओके, इट इज ए मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर योर कंसेप्ट. देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. यहां तक तो सभी को समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा हु विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. बढ़िया. अब यहां से देखिए एक्सेप्ट से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. Now, procedure established by law is that you can follow the steps. That, okay, you can introduce a bill in the parliament, you can get it passed, and then you can deprive a person of his life or personal liberty. So what is procedure established by law? These are the steps, like introducing a bill, taking away, okay, taking away, introducing a bill, and then taking away the rights of people. So what had happened before Menka Gandhi case was that the court said that this is literal, that yes, procedure established by law, if it is followed, the steps that are mentioned in the law, that is followed. Okay, so then you can take away a person's right. But in the Menka Gandhi case, they said due process. What is that? Due process में इन्होंने कहा कि ये जो है, there has to be an element of natural justice.
if you have followed the steps that are mentioned in the law, good. But it doesn't mean that this gives you a right to pass unfair law. क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई? जो स्टेप्स होते हैं ना लॉ के, व्हाट इज द स्टेप टू टू पास ए लॉ? व्हाट आर द स्टेप्स टू पास ए लॉ? आप पहले बिल लाते हैं पार्लियामेंट में, यू इंट्रोड्यूस ए बिल इन द पार्लियामेंट, एंड देन लेजिस्लेचर उस पर वोट करता है, डिबेट होता है, वोट होता है, देन इट गेट्स पास्ड. So what it used to happen before the Menka Gandhi case, that the court said that this procedure established by law is literal. What does it mean? It means that the legislature, it can pass the law by the steps that are mentioned, and then you can take away, you can deprive a person of his life or personal liberty. Okay? So क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझ में आया? नहीं आया? ओके, एक और मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना इसको. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर, देयर इज व्हाट प्रोसीजर का मतलब आप समझ रहे हैं? दैट देयर इज अ प्रोसीजर. किसी भी चीज को करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप्स, है ना? प्रोसीजर आप लैब में बनाते हैं ना, लैब में सपोज टाइट्रेशन करना है या कुछ करना है, तो देयर इज अ प्रोसीजर. एक स्टेप्स होता है, उसके बाद ही आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है. सो प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब द लॉ सेज टू पास एन एक्ट, law says to pass an act, you need certain steps or procedure. What are those steps? You introduce a bill in parliament, the parliament assent to it, and then the bill becomes an act once the president signs. Are these not the steps to pass a bill? Are these not the steps to pass a bill? Yes. तो यही है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो यहां पर क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21 देखिए, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. मतलब अगर मैं इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं, इफ आई डू द लिटरल इंटरप्रिटेशन, आई कैन पास एनी लॉ by following the steps, and if I follow the legal steps and pass any law, I can take away the people's life and liberty. अब समझ में आया? नहीं आया नो बोलिए, मैं ड्यू प्रोसेस इसके बाद समझाता हूं. पहले मुझे बताइए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझ में आया? नहीं आया है तो अभी बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत एक ये फ्रेजाइल कंसेप्ट है, क्योंकि 2023 में 2023 के पेपर में दिस क्वेश्चन हैड कम. यू हैव टू टेल मी राइट नाउ विदाउट फियर, डायरेक्ट मैसेज कीजिए. ठीक है? प्रोसेस सही होना चाहिए, वो लॉ के फेयरनेस अनफेयरनेस पे हम बात नहीं कर रहे. अब देखिए यहां पर क्या है, नो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, तो अगर मैंने लॉ पास किया बाय फॉलोइंग, लॉ बाय फॉलोइंग right steps. Okay, so this can be fair or unfair. Okay, so इसके फेयरनेस और अनफेयरनेस से मुझे मतलब नहीं है. इसके फेयरनेस और अनफेयरनेस से मुझे मतलब नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे आइए चलते हम डायरेक्ट मेनका गांधी केस पे. सो मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो है, दैट वाज सीज्ड बाय ए 1967 ऑर्डर. लेट अस से कि ये जो ऑर्डर है ये प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू बना था. Was this order passed by the competent authority in a proper procedure? The answer is yes. Yes. So what had happened that Menka Gandhi went to the court and she said, my passport has been seized. My personal liberty is deprived. But the Ministry of External Affairs, what did it say? They said कि नहीं हमारे पास power है, and we have followed the procedure that is established by law. We have followed the steps, and then what is going to happen is that हमने उसी power का use करके proper steps के साथ ये लगा निकाला है. So this is made by a competent authority.
ओके, सो मेनका गांधी सेड दिस इज अनफेयर, ये ऑर्डर ही अनफेयर है। सो व्हाट हैपेंड, उसके बाद जो है पहली बार कोर्ट ने जो है विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21 फेयरनेस और अनफेयरनेस चेक किया। उसके पहले चेक करती थी कि क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है, क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता था, वॉज द पर्सन हु मेड दिस लॉ, वॉज ही कॉम्पिटेंट और वॉज द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट, और द प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड और नॉट। द मोमेंट it was confirmed that a competent person and a proper step was followed, they did not use to check the fairness or unfairness. But in the Menka Gandhi case, they checked the fairness or unfairness, and there, from there, in India, due process was introduced. अब समझ में आया डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस? सभी को समझ में आया, स्पेशली जो इस साल वाले हैं। ड्यू प्रोसेस इन स्पिरिट होता है हमेशा, ड्यू प्रोसेस इज सब्जेक्टिव, ड्यू प्रोसेस इज सब्जेक्टिव, इट इज ओके, इट इज द बायस ऑफ द जज टू कॉल समथिंग फेयर और अनफेयर। ओके, सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज ऑब्जेक्टिव, इट इज कोडिफाइड, पहले से लिखा रहता है दैट ओके दिस दिस इज हाउ द बिल विल बी पास्ड, दिस इज हाउ इट विल बिकम एन एक्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाइड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, इट इज दी, इट इज दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हमने इंस्पिरेशन लिया है। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो है वहां पर ड्यू प्रोसेस उतना नहीं देखा जाता, वेयर एज ड्यू प्रोसेस कौन से कंट्री से आया है, ड्यू प्रोसेस यूएसए से आया है। ओके, यूएसए में ज्यादा देखा जाता है ड्यू प्रोसेस। सो हुआ क्या, ड्यू प्रोसेस 1978 में आ गया, और उसके पहले क्या हो गया, उसके पहले बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। सो हम कहते हैं डेडली डुओ क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी का या जुडिशियल जुडिशियल ओवररीच का डेडली डुओ इज बेसिक स्ट्रक्चर प्लस ड्यू प्रोसेस। बोथ वेयर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, both of them, they were not present in the original constitution 1973 में और ये 1978 में। उसके बाद से जो है जुडिशियरी इज डोमिनेटिंग द बैटल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू स्टार्टिंग से था, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 12 में हमेशा से था, आर्टिकल 13 में हमेशा से था। इफ द कोर्ट हैज द पावर टू डिफाइन what is a state, if it has power to interpret what is a law, okay, so हमेशा से जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 में एंड इन अ वे आर्टिकल 12 में आपको मिलेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और ड्यू प्रोसेस वाज नॉट देयर, एंड फ्रॉम हेयर ओनली वी हैड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। क्या अब आपको समझ में आया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस? यस, ठीक है। अब बात करते हैं की फीचर्स के बारे में ऑफ आर्टिकल 21। So it applies to both citizens and non-citizens. So everybody's life is precious, everybody's liberty is precious. Then it can be restricted by due process of law. पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश था, अब ड्यू प्रोसेस है। ओके, जुडिशियली एक्सपैंड किया जा सकता है, यस, इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी याद रखिएगा, व्हाई, बिकॉज इन द पास्ट 3 years it has been asked twice, KS Puttaswamy case. Then dignity and fair trial. Okay, so I think abhi has Justice Puttaswamy passed away recently. Justice KS Puttaswamy, I think he has passed away. Okay, yes, so Puttaswamy case क्या था, बेसिकली जो है ये जो पुट्टास्वामी जो था, यस ही had passed away this अभी 2-3 महीने पहले, आई रिमेम्बर, यस इट वाज इन न्यूज। तो हो सकता है राइट टू प्राइवेसी बोथ मेंस में आ सकता है और आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, बिकॉज इट वाज इन द न्यूज। So Justice K.S. Puttaswamy, he passed away in 2024. Yes. So emergency suspension, no. Please remember, emergency में 2 आर्टिकल्स नहीं आप सस्पेंड कर सकते. What are those? Article 20 and 21. Okay. केस लॉ में देखिए, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 केस. So during the emergency, the Supreme Court wrongly ruled
that Article 21 could be suspended. This was later overruled by the 44th Constitutional Amendment Act. Okay, so ये जो है, मुरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, एंड दिस वाज द एन एंटीडोट। हमने लास्ट ईयर भी इसको बोला था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एंटीडोट टू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट हैड इंजेक्टेड वेनम inside the Indian system by centralizing provisions, by increasing authoritarianism. And the 44th Constitutional Amendment Act was एंटीडोट, जैसे देते हैं ना सांप जब बाइट कर लेता है, ठीक है। सो यही जो है आपको इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर GS2 एंड प्रीलिम्स पॉलिटी पर्सपेक्टिव। ओके, सो अब AK गोपालन वर्सेस मेनका गांधी केस जो है, यही दो दो केस जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिकल 21 टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस। सो यहां पर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सो AK गोपालन केस जो है, इसमें आप नैरो इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सो ओनली फिजिकल फ्रीडम, दैट इज मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, you are alive, that's enough. So is being alive, just alive, just breathing, just free from jail, is it enough for you to experience liberty and life? No, life is more. Okay, life is more than that. Okay, so keep that in mind. मेनका गांधी केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी वाज ब्रॉड, इट इंक्लूड्स डिग्निटी, प्राइवेसी एंड फेयर ट्रायल। ओके, procedure established by law. So procedure established by law, law passed by legislature is enough. That is, procedure has been followed. The steps, you remember in the initial minutes I had told about the steps being enough. If you have taken the right steps, that will only be seen whether you have taken the right steps or not. Okay, so law must be fair, just and reasonable. In the Menka Gandhi case, Menka Gandhi case mein due process was introduced. So due process doctrine, initially it was not applicable in India, but it was introduced via the Menka Gandhi case. Impact क्या है? It allowed arbitrary detention law. So AK गोपालन केस में क्या हुआ था? So what had happened was, in the initial days, मद्रास की जो कांग्रेस की सरकार थी, they were cracking down on the communists. Okay, so बहुत सारे केसेस गए थे, a lot of cases they had went to the Supreme Court regarding personal liberty, and all of them the court ruled in the favor of the government. Okay, so this expanded the fundamental rights, the Menka Gandhi case. कोई भी डाउट है इसमें? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 टेबल दैट यू कैन फाइंड। ओके, इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस। अदरवाइज मैंने एक हैंडआउट भी अभी आपको भेजा है, इफ यू विल लुक इनटू योर ग्रुप, उसमें एक हैंडआउट है मैंने बनाया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस का, उसको भी हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ेगी। लेकिन इस टेबल को जो है, जब आप रिवाइज करेंगे तो इसको अच्छे से करना। ये अभी समझ में आ गया? किसी को डाउट है कोई? आप पूछ सकते हैं अभी, बिफोर वी मूव अहेड। सो व्हाट वाज द की रूलिंग इन मेनका गांधी केस? आर्टिकल 21 इज लिंक टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। ओके, सो मैंने क्या बताया था, गोल्डन ट्रायंगल याद है? गोल्डन ट्रायंगल जिसमें एक तरफ 14 होता है, एक तरफ 19 होता है, एक तरफ 21 होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, देखिए, नो फंडामेंटल राइट इज इंपॉर्टेंट देन अदर फंडामेंटल राइट, बट सम फंडामेंटल राइट्स हैव प्राइमेसी। बोलते हैं ना, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। So no fundamental rights is important than other fundamental rights, but some fundamental rights are more equal than others. और वो कहां से पता चलेगा? 14, 19 और 21 से। ओके, 14, 19 एंड 21 से। ठीक है, सो एक्सपैंडेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं तो स्कोप क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सपैंड किया या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक्सपैंड किया? नो, इट वाज डन बाय द जुडिशियरी बाय इंटरप्रेटिंग। सो ये जो इंटरप्रिटेशन है, it being a subjective affair, if the judiciary wants, it can do anything. यही जो subjective interpretation है, तो हुआ क्या था, that in the initial days
It was committed to Nehru. The judiciary was, in certain cases they used to dissent, but more or less नेहरू की बात मानी जाती थी. मोर और लेस जो है उनकी बात मानी जाती थी. जैसे कि आपने देखा कि ये शंकरी प्रसाद केस में देयर वाज सम नोक जोक बिटवीन नेहरू एंड द जुडिशरी. उसके बाद भी जो है थोड़ा रिस्पेक्ट था दोनों में. इंदिरा गांधी जो है शी वॉज अ बेलिजरेंट लेडी. थोड़ा ये जो है शी वांटेड टू डोमिनेट, टू कंट्रोल द अफेयर्स. सो उसके लिए जो है वहां पर आपने देखा गोलकनाथ केस से लेके कैसे केशव नंदा भारती केस, वी हैड द इंटायर लफड़ा बिटवीन द जुडिशरी एंड इंदिरा गांधी. And in the initial in the end via the Kesav Nanda Bharti case they checkmated Indira Gandhi. लो ठीक है, if you want to uphold the 24th Constitutional Amendment Act and make amendments not laws, you are free to do so, but here is a lollipop, okay, of basic structure. या बॉम्ब है एक बेसिक स्ट्रक्चर का. ठीक है, अब यहां पर देखते हैं एक्सपैंडेड स्कोप क्या है. पहले क्या था, मियर एनिमल एग्जिस्टेंस. यू आर अलाइव, यू आर फ्री, दैट्स इट. आप जेल में नहीं हैं और आपकी सांसें चल रही हैं, दैट वाज इनफ फॉर आर्टिकल 21. बट आफ्टर द मेनका गांधी केस हमने बोला, क्या बोला, दैट एनी लॉ विच इज देयर टू टेक अवे योर फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, दैट हैज टू बी जस्ट एंड फेयर. ओके, सो पहले तो स्कोप एक्सपैंड किया गया, राइट टू लिव विथ डिग्निटी. ओके, ये अब मेनका गांधी केस ओपन द फ्लड गेट्स. इट ओपन द फ्लड गेट्स फॉर अनदर केसेस टू ऐड. जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्विंग लिस्ट है ना, हर केस के साथ उसमें नई चीज ऐड की जाती है. उसी तरीके से आर्टिकल 21 में हर केस के साथ नई चीजें ऐड की जाती हैं. सो राइट टू लिव विद डिग्निटी, दिस वॉज इन द फ्रांसिस मुलिन केस. तो इसमें क्या कहा कि बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिकल 21. राइट टू प्राइवेसी, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. इट वाज मेड इन केएस पुट्टास्वामी केस. तो ये प्राइवेसी इतना लेट क्यों आया? ये बाकी सारे 1980s के हैं, ये 2017 का है, कैसे आया? बिकॉज पहले इंटरनेट आधार नहीं था. अर्लियर पीपल वेयर नॉट कनेक्टेड. तो ये जो ऑनलाइन प्राइवेसी है 80s 90s इवन इन अर्ली 2000, इट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू. राइट टू डाई विथ डिग्निटी, पैसिव यूथनेशिया. सो इट वाज अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, कॉमन कॉज. सो अलीना शॉनबॉग केस याद आया दोस्त आपको? ये जो था, यही नाम थे ना उनका, अलीना शॉनबॉग समथिंग, हाँ, जो नर्स थी जिनको वेजिटेटिव स्टेट में थी. वाई? बिकॉज शी वॉज रेप्ड बाई ए विजिटर टू द हॉस्पिटल. अरुणा, यस, नॉट अलीना, अरुणा शॉनबॉग केस. सो अरुणा शॉनबॉग केस जो था उसमें क्या था, that this lady, she was a nurse, and unfortunately very brutally she was raped and she fell into a coma. After she recovered, she was in a permanent vegetative state. उनकी सांसें चल रही थी लेकिन उन वो जो है चल फिर नहीं पा रही थी. तो बहुत बार ऐसा कहा गया कि लेट हर डाई, बट एक्टिव यूथनेशिया जो है that was rejected. Okay, so what happened in the common cause case was the courts they took, okay, the courts they took cognizance of the issue that this Miss Schonberg, she is beyond beyond a condition from where she can recover. She has been suffering from the past 40 years, so it will be better for her. Okay, it will be better for Miss Schonberg to die, but we cannot allow we cannot allow active euthanasia. मतलब कुछ आप उनको साइनाइड या कुछ ऐसा इंजेक्शन दे के नहीं मार सकते, बिकॉज दिस विल सेट अ प्रेसिडेंट एंड मेनी डिप्रेस्ड पीपल. जैसे अभी हो रहा है ना नीदरलैंड्स में, व्हाट इज हैपनिंग, वहां पर यूथनेशिया अलाउ कर दिया है. तो 26-27 ईयर ओल्ड who are not happy with their life, they are signing up to getting euthanasia. ओके, सो ये जो है इसमें हुआ क्या, पैसिव यूथनेशिया इज दैट व्हेन शी विल गेट बैड, तो उनको जो है ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. मतलब व्हेन शी विल गेट बैड, सो शी विल नॉट बी पुट ऑन द वेंटिलेटर. ये चीज अमेरिका में डीएनआर के नाम से जाना जाता है, डू नॉट रिससिटेट. आपने देखा होगा बहुत सारे शोज में आता है दैट द पर्सन इज कैरिंग अ डीएनआर कार्ड. ओके, ऑलराइट, डीएनआर कार्ड जो है वो कैरी करते हैं दैट अगर वो इस प्रॉब्लम में फंस गए दैट दे आर नॉट एबल टू ब्रीद. ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है. तो देन राइट टू फेयर ट्रायल, नो आर्बिट्ररी कन्विक्शन. आपका जो कन्विक्शन है वो आर्बिट्ररी
नहीं होगा, उसके जो है प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसेस, फेयरनेस हैज टू बी देयर, ओके। देन राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर, सो प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस ब्रुटैलिटी। डीके बसु केस में था दैट यू नो यू पुलिस कैन नॉट डू कस्टोडियल टॉर्चर। अगर कस्टोडियल टॉर्चर करेगा, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पुटिंग कस्टोडियल टॉर्चर इन आर्टिकल 21? कोई बता सकता है? अगर आप सोच सकते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा, इसको हमने आर्टिकल 21 पार्ट 3 में डाल दिया। मैंने पार्ट 3 में डाल दिया। दे कैन डायरेक्टली अप्रोच और नॉट। अगर आपके साथ पुलिस पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द लोअर कोर्ट्स, ओके। So that is why it is said that custodial torture is something that is taken very very seriously. अभी एक आईपीएस ऑफिसर, यंग आईपीएस ऑफिसर था, so he did unspeakable torture. Yes, this Mr. Balveer, तमिलनाडु कैडर का आईपीएस था, so this person he did unspeakable torture, ठीक है। एंड देन देयर वाज अनदर केस बेनी एंड जैफिर का, सो इट वाज अगेन फ्रॉम तमिलनाडु, बेनी एंड जैफिर। So these were father and son, both were okay, both were they went through custodial torture, and then I think one of them also died. बेनी एंड जफिर में से किसी का डेथ हो गया था। सो ये जो है, ओके, ये जो है कस्टोडियल टॉर्चर, दिस इज टेकन वेरी वेरी सीरियसली। ओके, सो समबडी इज आस्किंग अबाउट ओल्गा टेलिस केस। तो ओल्गा टेलिस केस क्या था? बेसिकली 1985 में दैट वाज अ केस अगेंस्ट द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। सो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, दे वर एविक्टिंग द स्लम ड्वेलर्स। और ओल्गा टेलिस जी जो हैं, शी वाज आई थिंक ये व्हाट डू यू कॉल हर, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ वर्कर, एंड शी वेंट टू द कोर्ट, एंड देन शी बेसिकली आर्ग्यूड, ओके, आर्ग्यूड दैट ये जो शेल्टर, राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इट इज एविक्टिंग द शेल्टर ऑफ दीज पीपल, ओके। सो ये जो है, वहां पर देखा गया कि राइट टू लाइफ जो है, दैट वाज very important, and right to life also contains right to shelter. So this is the Olga Tellis case. Is it clear? Okay, अब हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 के बारे में। सो इसमें है क्या? इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट्स इन द जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस। सो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, what is personal and non-personal data? So data is of two types when we classify data. One is personal, one is non-personal. So okay, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई से दैट श्रीवत्स, वो, उस लड़के का नाम श्रीवत्स है, या उस लड़के का नाम आई से राघवेंद्र है। सो कैन आई, इससे पता चल रहा है हु किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? उस लड़के का नाम श्रीवत्स है, दैट बॉय इज कॉल्ड श्रीवत्स, और दैट बॉय इज कॉल्ड राघवेंद्र, और दैट बॉय इज कॉल्ड प्रांजल। सो डू यू नाउ अंडरस्टैंड कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पता चल रहा है? सबको पता चल रहा है एग्जैक्टली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? दैट बॉय इन क्लास। अब पता चल रहा है किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? और दैट लेडी इन क्लास, और दैट गर्ल इन क्लास, पता चल रहा है? तो यही चीज है डिफरेंस। पर्सनल डेटा से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नॉन पर्सनल डेटा से आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। पर्सनल डेटा में क्या आता है? आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर ईमेल आईडी, समथिंग लाइक दैट। नॉन पर्सनल डेटा में क्या है? यू आर एज 24 ईयर्स, बहुत सारे 24 ईयर ओल्ड हैं, ओके। यू आर अ बॉय, बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, ओके। सो नॉन पर्सनल डेटा यू आर नॉट आइडेंटिफाइबल, पर्सनल डेटा यू आर आइडेंटिफाइबल। तो इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा की बात की गई थी। व्हाट हैपेंस, व्हाट्सएप जो है, इट इज फ्री टू यूज। व्हाई इट इज वैल्यूड एट $50 बिलियन? व्हाट्सएप जो है 50-100 बिलियन डॉलर्स क्यों है? डेटा माइनिंग दोस्त, दे डू डेटा माइनिंग। आप लिखते हैं मैंने अमेजोन से एक परफ्यूम मंगाया, दैट डेटा इज स्टोर्ड, दैट डेटा इज सोल्ड टू अमेजोन, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग द अमेजोन एड्स। तो टारगेटेड एड्स के लिए जो है, सी, मेटा, गूगल, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दे आर? मेटा एंड गूगल, आर दे सोशल मीडिया कंपनी? नो, दे आर एड कंपनीज। एडवर्टाइजमेंट बेचती है, वहीं से पैसा आता है इनका, ओके। सो दे आर द बिगेस्ट एड कंपनीज इन द वर्ल्ड। सो डेटा माइनिंग जो है, उसके लिए केस है। सो इससे जो है के एस पट्टास्वामी केस में
प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा होता है, और प्राइवेसी इन पर्सनल चॉइसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसी से जो है 377 मैंने बताया था आपको नवतेज सिंह जौहर केस में। ओके, नवतेज सिंह जौहर केस में 14 एंड 21 देखा गया था, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। बिकॉज डीक्रिमिनलाइजेशन क्यों जरूरत पड़ी, डीक्रिमिनलाइजेशन से क्या जरूरत पड़ी? सो एक चीज आपको समझनी होगी, what a person does behind closed doors with another consenting adult is none of anyone's business. The key word is behind closed door consenting. Okay, so consenting है doing it in their privacy. So it should not be anybody's consent, okay, concern rather. So 377 में दो चीजें हुई। पहली बात तो, if I can not pursue my sexual orientation with another consenting adult, I am not able to live a life of liberty. दूसरी चीज क्या है, इफ आई एम टारगेटेड फॉर माई पर्सनल चॉइसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो आर्टिकल 14, इट मींस आई एम ओके, आई एम स्पेसिफिकली टारगेटेड, आर्बिट्रेरिली टारगेटेड। क्या ये चीज आपको समझ में आई? वाई 14 एंड 21 वॉज वायलेटेड व्हेन वी वेर टारगेटिंग होमोसेक्सुअलिटी। दूसरी चीज एक और क्या थी, दिस वॉज ए कॉलोनियल लॉ। एंड अगेन यहां पर क्या है, मिशनरी इन्फ्लुएंस, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस है। होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन। और कॉलोनियल हमारे मास्टर्स क्या फॉलो करते थे, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? क्रिश्चियनिटी। सो दे सेड दैट दिस इज अ वेस्टीज, वेस्टीज इज समथिंग दैट इज अ रेलिक फ्रॉम पास्ट विच इज नॉट नीडेड। ओके, सो ये जो चीज है उसको स्ट्राइक डाउन किया गया यूजिंग दिस प्राइवेसी आर्ग्यूमेंट। बिकॉज प्राइवेसी में क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट समबडीज कंसर्न। एंड प्राइवेसी जो है पहले के एस पुट्टास्वामी में पास हुई और उसके बाद उसी को यूज करके इट वॉज रेड विथ आर्टिकल 14। बिकॉज आर्टिकल 14 में यू वेर आर्बिट्रेरिली पनिशिंग समबडी बाय आइसोलेटिंग देम फ्रॉम अदर्स। ये अलाउड नहीं है। राइट टू इक्वालिटी याद रखिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एम आई इक्वल बिफोर लॉ इफ आई एम टारगेटेड फॉर माई सेक्सुअल ओरिएंटेशन? द आंसर इज नो। ओके, सो ये जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड with the context of article 21. Then it limited also the scope of for Aadhaar linkages for private services. Okay, so private services के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए ठीक है। भाई, बिकॉज पब्लिक, गवर्नमेंट के पास ऐसे भी आपका डेटा है, गवर्नमेंट के पास आपका ऐसे भी डेटा है, ठीक है। सो लिमिटेड द स्कोप ऑफ आधार लिंकेज इन प्राइवेट सर्विसेज, मतलब नो प्राइवेट कंपनी कैन कंपेल यू टू गिव यू योर आधार डिटेल्स। ओके, सो अननेचुरल ऑफेंसेस में प्रीवियसली क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी एंड सर्टेन सेक्सुअल एक्ट। सो नवतेज सिंह जौहर केस में क्या हुआ, इट वाज स्ट्रक डाउन, पार्शियली सेक्स डाउन। सो कंसेंसुअल सेम सेक्स रिलेशंस आर लीगल, नॉन कंसेंसुअल एक्ट्स रिमेन पनिशेबल। सो मैंने बोला कीवर्ड क्या था, प्राइवेसी एंड कंसेंट। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विदाउट कंसेंट इट इज रेप। ऑलराइट, रेप का क्या होता है, रेप का डेफिनेशन अगर आप देखिएगा तो कंसेंट की जरूरत होती है। उसमें भी जो है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इफ यू गो टू द लॉ कॉलेज, तो लॉ कॉलेज में इसको जो है बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है। बिकॉज देर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन डिफरेंशिएट। बट यहां पर आपको सिर्फ फॉर यूपीएससी आपको कंसेंसस देखना है, ठीक है। आपको क्या देखना है, कंसेंसस देखना है, ठीक है। सो recognized LGBTQ plus rights under Article 21। So Article 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है वो LGBTQ प्लस राइट्स में आ जाता है। वो हम वहां से देखते हैं, ठीक है। अडल्ट्री एंड आर्टिकल 21। सो प्रीवियसली ओनली मेन कुड बी पनिश फॉर अडल्ट्री। आपने जोसेफ शाइन केस में हमने पढ़ा भी था। ये 1950s की बात है। इन द 1950s देयर वाज अ केस जहां पर क्या कहा गया, women cannot be punished for adultery because that was something, that was the norm back then, women abla nari, हम जो कहते हैं ना कि how can women get out of the relation, it was something unimaginable। ठीक है, तो बोला गया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ओनली मेन कैन बी पनिश फॉर अडल्ट्री। ओके, सो आई थिंक अडल्ट्री में अगर आप देखें तो उस समय बहुत फेमस केस भी चला था, KM नानावटी जो केस था, आई थिंक वो जो जिसपे रुस्तम बना था मूवी। सो वो यही था ना, दैट दिस लेडी, द वाइफ ऑफ द नेवल कमांडर,
she got out of the relation and she got entangled with another man. So इसमें क्या हुआ, जोसेफ शाइन में क्या हुआ, अडल्ट्री इज नो लॉन्गर ए क्राइम, हाउएवर इट कैन बी ग्राउंड फॉर डिवोर्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री वायलेटेड जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी। सो दोनों तरफ है, दोनों तरफ क्या है, आप अगर ओनली मेन कह रहे हैं तो दिस इज अनफेयर टू मेन एंड विमेन बोथ। वाई? बिकॉज विमेन जो है आप उनको एक तरीके से पेडेस्टलाइज कर रहे हैं, उनको आप इक्वली ट्रीट कर नहीं रहे। मैंने कहा ना, इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मॉडेस्टी का, दैट एवरी वुमेन हैज मॉडेस्टी विद इन हर। ओके, प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए ठीक है, आई रिस्पेक्ट वुमेन, वुमेन आर वेरी मॉडेस्ट क्रीचर्स, बट ऑन द लॉ फ्रंट अगर आप देखिएगा तो आर वी ट्रीटिंग द मेन एंड वुमेन द सेम? हम वुमेन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? लाइक अ ग्लास डॉल। व्हेन वी आर सेइंग दैट वुमेन हैव मॉडेस्टी, इट मीन्स दैट वुमेन, हम दे रहे हैं वुमेन को मॉडेस्टी। वुमेन कैन नॉट डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, दे आर लाइक ग्लास डॉल्स, उनका फ्रेजाइल मॉडेस्टी है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दोनों के लिए ये गलत बात थी, मेन के लिए भी बिकॉज दे वेर सिंगुलरली टारगेटेड, एंड फॉर वुमेन भी। ओके, फॉर वुमेन भी जो है, तो ये जो है अडल्ट्री जो है इट वाज स्ट्रक डाउन, एंड दिस स्ट्रेंथेंड द जेंडर राइट्स अंडर आर्टिकल 21। अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, विच कम्स अंडर आर्टिकल 21A। सो राइट टू एजुकेशन इट वाज ए फंडामेंटल राइट, एंड अंडर आर्टिकल 21A के बारे में मैंने क्या बताया था, A B C D, अगर ऐसे बड़ा बड़ा जो अपर केस में लिखा रहे, A B C D, दिस आर अमेंडमेंट एडिशंस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, दीज आर एडिशंस बाद में जो है डाला गया है। इट इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 years, and it was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. And text of Article 21A क्या है, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine. Okay, so state को दिया गया पावर। so by law क्या था, right to education act 2009। अगर आपको याद होगा तो बचपन में ऐड आता था, that teacher is taking attendance, and when she says the name of this person, एक लड़के के बारे में, तो वो उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, देन हिज क्लासमेट्स से कि मैम उसके पापा फीस नहीं भर पाए, सो ही इज आउट। ओके, बट देन ही कम्स रनिंग एंड से सॉरी मैम मैं लेट हो गया, देन द किड्स आस्क कि यू आर, तुम्हारे पापा तो फीस नहीं भर पाए थे ना, व्हाई यू आर हियर? ही सेड कि आरटीई पास हो गया, राइट टू एजुकेशन, एंड नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू एजुकेशन। सो आरटीई 2009 जो है यही मे बाय लॉ है। क्या इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहीं पे था? वॉज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत अच्छे, ये जो है डीपीएसपी जो है उसमें था, बट डीपीएसपी और 21A में क्या डिफरेंस है? कीपिंग इट इन डीपीएसपी, व्हाई इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम डीपीएसपी टू 21A? जस्टिसिएबिलिटी, in DPSP it was non-justiciable, you cannot go to court, but now you can go to court। अब उसके जगह वहां पर क्या बच गया है, डीपीएसपी में कुछ बच गया है, वी हैव टेकन अवे द आर्टिकल, ये जो 21A का टेक्स्ट है फ्रॉम द डीपीएसपी, नाउ मेड इट जस्टिसिएबल। अब न्यूट्रिशन की बात होती है वहां पर, द स्टेट वुड इंश्योर न्यूट्रिशन फॉर द किड्स। ओके, यहां पर जो है, यहां पर आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यू कैन गो टू द कोर्ट डायरेक्टली and you can seek remedy। Okay, you can seek remedy for that। Okay, what are the key features of article 21A? It applies to children aged 6 to 14 years। Is it free? Yes, for government and aided school it is free। Is it compulsory? Yes, the government must ensure education for all children। Who provides the education? Both the central and state government। Private schools must reserve 25% seats for weaker section। एंड लीगल बैकिंग, सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो इसमें होता क्या है दैट जो स्कूल्स होते हैं उनमें अगर 100 का स्ट्रेंथ है प्राइवेट स्कूल्स में, सो 75 आर पेड एंड 25 आर अंडर आरटीई। ओके, यहाँ पर जो है आप बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, बट दिस इज, इफ आई गिव माई सब्जेक्टिव ओपिनियन, दिस इज अ सोर्स ऑफ वेरी बिग करप्शन। आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक हिंदी मीडियम, वही है ना, हिंदी मीडियम थी क्या मूवी, जिसमें इरफान खान साहब थे, इरफान खान साहब थे, तो उसमें जो इरफान खान की मूवी थी उसमें वही था,
दैट ये जो आरटीई है उसको कैसे मिसयूज करके राइट टू एजुकेशन को, और अमीर घर के लोग जो हैं, अमीर घर के लोग, दे दे यूज टू लार्प एज पुअर, दे यूज टू टेक ऑन रेंट, ओके, दे यूज टू टेक ऑन रेंट द झुग्गी झोपड़ी, एंड वहां पर रहते थे कुछ दिन. The people from schools used to come and they used to see whether they are really EWS, and then after their kids used to get admitted, then they used to go back to the बिग मैंशन. ओके, सो बहुत बड़ा करप्शन का सोर्स है ये. अब हम बात करते हैं उन्नी कृष्णन केस की. सो इट रिकॉग्नाइज राइट टू एजुकेशन एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ. मोहिनी जैन केस, it said that education is a fundamental right and the state must ensure affordable access. Okay, so right to education जो है आर्टिकल 21 है, उसके लिए आपको याद होगा मे बाय लॉ लिखा हुआ था. व्हाट वाज द टेक्स्ट? दैट द गवर्नमेंट मे बाय लॉ. सो मे बाय लॉ जो है, ये लॉ आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के फॉर्म में आया. और इसमें क्या है? फ्री एजुकेशन. सो नो चाइल्ड शैल बी चार्ज फीस इन गवर्नमेंट स्कूल्स. कंपल्सरी एजुकेशन. द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्कूल एनरोलमेंट. स्कूल्स मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर्स, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड्स. अगर आपको इवन सीबीएसई का अफिलिएशन लेना होता है, सो यू नीड टू हैव सर्टेन यार्ड्स ऑफ प्लेइंग ग्राउंड. ओके, because earlier what used to happen that people used to start CBSE schools in their apartment complex. तो एक अपार्टमेंट को रेंट पे लेके और उसी में घर को कन्वर्ट कर देते थे. नाउ व्हाट इज द केस? दैट नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन. You have to have a playground of certain square meters. Then curriculum, the states must follow an approved syllabus. No detention policy, no child can be failed until class 8. Okay, but इसको change कर दिया गया in 2019. Why it was changed? Because this was leading to decline in quality of kids. कोई भी जो है, किसी भी टाइप के बच्चे को जो अनपढ़ भी हैं उनको 8 तक पास कर दिया जाता था. So 25% reservation in private schools. Private schools must reserve 25% seats for weaker sections. Okay. Society for Unaided Private School upheld the constitutional validity of RTE Act but exempted minority school. तो हुआ क्या था? The private schools who did not receive any kind of, who were from private funds and who were operating from the funds of, these big corporates. So what had happened was that they formed an association and they went to court and they said that 25% seats it will eat into our revenue stream and this will make education expensive for other kids. So basically this was struck down and they were told that no, you have to accommodate 25% kids. Okay, see, देखिए ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है. भाई, बिकॉज होता क्या है ना कि दैट जो आरटी किड है जो कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से आए हैं, ऑल्दो दे कैन गो इनटू बिग स्कूल्स, बट व्हाट हैपेंस इज दैट दे सी देयर peers having iPhones, they see their peers having laptops. Okay, they see their all these things they see, and then they see them going to these expensive trips. तो इसके चलते बहुत सारे इश्यूज आते हैं. ओके, all right. So there are also challenges in implementing right to education like poor infrastructure, high dropout rate, quality of education, teacher shortage, low private school compliance. Many private schools they try to avoid 25% reservation. Example क्या है? एसर report जो है, this you can quote in your mains examination. Annual status of education report. Okay, so एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम. सो प्रथम जो है वो ये रिपोर्ट निकालता है. एनजीओ प्रथम जो है वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है. एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है, तो उसके रिपोर्ट्स आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, उसके रिपोर्ट जो है यू कैन कोट. एंड स्टूडेंट्स इन रूरल स्कूल्स दे लैक बेसिक लिटरेसी एंड मैथ स्किल्स डिस्पाइट बीइंग इनरोल्ड. ओके, सो ये सारी चीजें जो है, एनजीओ प्रथम वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी पॉपुलर इन विजन टेस्ट. विजन बहुत मेरे समय में, मतलब आई एम नॉट दैट ओल्ड बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 21, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो उस समय बहुत ही क्वेश्चंस उसके टेस्ट में आते थे. ठीक है, ऑल राइट. मेरे समय में लगता है 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं.